Hello students. So here we are going to derive the expression for electric field due to a thin ring. अभी निकालेंगे थिन रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो थिन रिंग मान लीजिए एक वायर है 2 पाई आर लेंथ का वायर है जिसको हमने रिंग शेप दे दिया है. तो as you know we have the formula for electric field intensity due to point charge and if you will take a small part of this ring that will be a point charge. That means the ring consists of so many point charges and we know electric field due to point charge is kq by r square. That's why let us find out the electric field intensity due to the small part of the ring. Then for the entire ring we have to integrate. Okay. So in the figure as you shown we are going to find out the electric field intensity at the axis of the ring. Axis means suppose it's a ring. Axis means it's a line passing through the center perpendicularly. And we are going to find out the electric field intensity at any axial point. Look here, any axial point. So here it's a ring, its axis, its axis, radius is r, charge is q, and here we took a point P here. We took a point P here which is at a distance x from the center of the ring O. Got it? P is any point on the axis of the ring at a distance x from the center of the O. Now we took two small section of the ring, one small section here of length dl and the another one at the diametrically opposite side same length dl. So we took two small sections of length dl and suppose the electric field intensity due to this small section will be radially away at this point P and that is d1 denoted by d1. The field due to this small charge is d1 and the field due to this small charge is d2 here, radially away. Now since the length of these small sections are same, the distance are same, the magnitude of electric field will be same. Now let us find out the magnitude of electric field of d1 and d2. So it clearly shows that d1 equal to guys d2 equal to k small q by r square. Okay, now here for q is how much? Q is total charge by 2 pi r. This is charge per unit length into length of the small section is dl. So length of each small element is q by 2 pi r into dl and small r will be root over of r square plus x square. Using Pythagoras theorem we can write this small r, this small r. Okay, so now for the entire ring, then how you can find out? So what we got? So d1 equal to d2 equal to k. In the place of q you can write q by 2 pi r into dl, isn't it? By r square we can write r square plus x square. Okay. Achha. Now if you will resolve these components, if you resolve this d1 and d2, what you will get there guys? If you resolve d1, this component will be de1 sin theta, isn't it? This component will be de2 sin theta. So since d1 equal to d2, so the sine component gets cancelled out while the cosine components gets added up. That means this is a de2 cos theta and de1 cos theta is here. So by resolving these vectors, what we concluded that sine components gets cancelled out, cosine components gets added up. That's why we have to integrate this cosine component to find out the electric field intensity due to whole the ring. जैसे कि आपको पता होगा यहाँ साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कोसाइन कंपोनेंट ऐड हो रहा है, तो इसीलिए जब रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमको तो हमको d1 या d2 नहीं, उसका कोसाइन कंपोनेंट लेना होगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इसीलिए हमने दो स्मॉल कंपोनेंट्स लिए डायमेट्रिकल अपोजिट में. तो अभी जो बचा आपका d डैश का होगा, d डैश होगा आइदर d1 और de2 cos थीटा. ओके, नाउ यू कैन राइट d डैश क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये सिंप्लीफाई करने से k इंटू dl होगा, ठीक है, इंटू q रहेगा यहाँ ऊपर, फिर नीचे 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर. देख रहे हो बच्चों, एक्स स्क्वायर अभी इंटू dl आ जाएगा. अब जो cos थीटा है देख लीजिए आप, cos थीटा, तो cos थीटा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज. बेस आपका है x
देख रहे हो बच्चों, x और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, तो अगर हमको पूरा रिंग के लिए फील्ड निकालना हो, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट, दैट इज डी डैश 0 टू ई। अभी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए, सारे के सारे कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, तो k q x ये बाहर आ गया बच्चों। अभी नीचे क्या रहा, 2 पाई r, देख रहे हो, और ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, एक्स स्क्वायर का 3/2, पावर 1 है, ये पावर हाफ है, 3/2, बाकी बचा आपका dl इंटीग्रेशन। तो लिमिट क्या होगा बच्चों, लिमिट होगा 0 टू 2 पाई r। ध्यान से देख लीजिए, 0 टू 2 पाई r, सारे के सारे कांस्टेंट आउटसाइड, तो लिमिट मैंने लिया 0 टू 2 पाई r। अब देख लीजिए, अब इंटीग्रेट करने से क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, अब इंटीग्रेट करने से आपको मिल जाएगा डी डैश का, आपको मिल जाएगा ई। अभी के क्यू एक्स ये तो न्यूमरेटर पे था, तो 2 पाई आर रहा इधर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। अभी डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, लिमिट यूज करने से ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर माइनस 0। देख लीजिए, 2 पाई आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अभी जो बचेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फाइनल एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अगर थोड़ा सा उसको और समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सेंटर पे आपका x क्या होगा, 0 होगा, तो सेंटर पे x 0 मतलब x 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है गाइस। नाउ हियर ये एक हुआ, अगर x इज फार फार लेस देन r, मान लीजिए सेंटर के पूरा करीब हम निकाल रहे हैं, तो x इज फार फार लेस देन r, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देख लीजिए, क्यू एक्स हियर, ऊपर जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, वो नेग्लेक्ट हो गया, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का 3/2 होगा क्या, आर क्यू, ये मिल जाएगा आपका सेंटर के लिए। इसका मतलब ये हुआ सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लिनियरली इंक्रीज होगा। नंबर 3 पॉइंट पे एक्स इज फार फार ग्रेटर देन आर, तब क्या होगा देख लीजिए, अब ये जो आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का 3/2 नीचे आ जाएगा, एक्स क्यू, और ऊपर एक एक्स है, ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि बहुत छोटा होगा, एक्स स्क्वायर का 3/2 एक्स क्यू होगा, ऊपर एक एक्स है, तो ये आपका आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जो ये पॉइंट चार्ज का बिहेवियर है। तो इसका मतलब ये हुआ बहुत दूर से रिंग भी पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है। तो बच्चों सेंटर में 0 होगा, सेंटर से इंक्रीज होगा, तो जरूरी है एक जगह पे मैक्सिमम भी होगा। तो याद रखो, x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2, ये हम निकाल सकते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा के लिए, ये आ जाएगा आपका ई मैक्सिमम, x इज इक्वल टू आर रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो अगर आप ग्राफ की बात करें, ध्यान से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर पे 0 है, लिनियरली इंक्रीज होगा, दैट इज ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कब तक, r बाई रूट 2 तक डिस्टेंस जो है, मैंने लिखा था यहाँ कंडीशन मैक्सिमम, तो r बाई रूट 2 के बाद वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगता है, ये होगा ग्राफ उसका। तो ये फाइनल फॉर्मूला है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये क्लोज टू द सेंटर पे होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर क्यू इंटू एक्स होगा, लीनियरली इंक्रीज हो रहा होगा, और बहुत दूर जाने के बाद वो रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, एक्स विल बी फार फार ग्रेटर देन पे, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए ग्राफ, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं उसको कंडीशन फॉर मैक्सिमम यूज करके। थैंक यू गाइज।